Hello, good morning students. Once again, welcome to Science Online class. I hope you all are safe at home. Students, today we are going to start new chapter of your syllabus, that is chapter number 5, coal and petroleum. I hope you all are aware about these words. We all know what is coal and petroleum. Students, to living a good life, we need some resources. Some resources are nature and some which is done by man-made. So those resources we're going to discuss about, which is comes from nature, is called nature resources. Okay. So these resources are two types. First is inexhaustible resource. Second is exhaustible resource. Inexhaustible resource means resource which is present in unlimited quantity, means the things which is not going to an end. Doesn't matter how long you are living, how long this earth is going to survive, but inexhaustible resources are not going to end. Example, sunlight and air. Whereas second, exhaustible resource. Exhaustible means the resource which is limited in nature, which is used by human living organism. Example, we all know forest, coal, petroleum, natural gas. So today we're gonna study about coal and petroleum. Okay, so before we go through coal, petroleum, we will see origin of this all such things. So natural sources like coal, petroleum, natural gas, this were formed from the dead remain organism. मतलब क्या होता है, millions of years ago जो डेड बॉडीज है दैट वाज ब्यूरिड इनटू द अर्थ, उसमें से जो रिसोर्सेज मिलता है दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. नाउ व्हाट इज दिस ऑल? फर्स्ट इसमें कोल. कोल, एज वी ऑल नो, कोल तो आपने देखा ही है, यू ऑल हैव सीन, इवन वी ऑल हैव यूज्ड, गॉट इट. सो कोल इज अ हार्ड स्टोन which is black in color. In earlier time, not today, coal was also used as a fuel in railway engines, we all know. Today coal is also used as to cook food. It is also used in thermal power plant to produce electricity. Now how coal is formed, let us understand story about it कि coal form कैसे होता है. So here you have seen कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो. सी देखो कितना लॉन्ग टाइम है, नॉट 5, 10, 15, 20, 100, 1000 ईयर्स. इट इज स्टोरी अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो. पहले ऐसा हुआ होगा कि ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज बाई ट्रीज like dead bodies of plants, animals, they all were buried into the earth over a long period of time due to high temperature and high pressure. That plants or living bodies who were buried, which got slowly converted into the coal. तो वो कोल को बनने में कितना टाइम लगता है? 300 million years. And today within a matter of time we are using it. So you can see जो इसके resources है वो कितने limited है. कोल के अंदर मेनली होता है कार्बन विच इज़ ब्लैक इन कलर. और जो 300 मिलियन ईयर्स की ड्यूरिंग में जो प्रोसेस हुए, तो अर्लियर दे ऑल वर डेड वेजिटेशन. आप डेड प्लांट्स बोल सकते हो, डेड एनिमल की डेड बॉडी बोल सकते हो. दिस ऑल वर कन्वर्टेड इनटू कोल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन. जो भी डेड बॉडीज होती है, जो प्लांट्स की होती है, एनिमल्स की होती है, विच वर ब्यूरिड, उसमें से आपका कॉल बनता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल वी ऑल नो. उसमें फर्स्ट है आपका कोक. कोक इज ऑल्सो लाइक अ कोल विच इज टफ एंड ब्लैक सब्सटेंस विच इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. उसमें कार्बन जो भी आपका कोल है, कॉक है, फर्दर वी विल सी कॉल गैस एंड ऑल, सब में आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है आपका कार्बन. कॉक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील ऑल्सो. नेक्स्ट सी सेम लाइक दैट इज कोल tar which is black color, thick liquid layer which is with the unpleasant smell. उसका यूजेस कहाँ पे होता है? सो दैट ऑप्टेन टू यूज सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव परफ्यूम
रूफिंग जहाँ पे आप ब्लैक लेयर लगाते हो, कोल टार इज यूज. एंड इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेफ्थालिन बॉल्स. डू यू नो व्हाट इज नेफ्थालिन बॉल्स? नेफ्थल, आप जो डामर का जो बॉल्स बोलते हैं ना, डामर बॉल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेफ्थालिन बॉल. वहाँ पे भी आपका कोल टार यूज होता है. Last of this coal, that is coal gas. You can see this picture. Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. वो कहाँ पे होता है? विच इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री. जो आपकी बड़ी बड़ी मिल्स, जो इंडस्ट्री चलती है, उसमें जो एज अ फ्यूल जो यूज़ होता है, दैट इज़ कोल गैस. ओके, सो दिस इज़ फॉर कोल. नाउ नेक्स्ट ऑफ अगेन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम. यू हैव हर्ड दिस वर्ड, आपके माइंड में चीज स्ट्राइक होगी, आवर फ्यूल. सो पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल. कहाँ पे पेट्रोल यूज होता है? वी ऑल नो, इन मोटर बाइक, योर व्हीकल, स्कूटर, बाइक्स एंड ऑल. अनदर वन इज डीजल. डीजल कहाँ पे यूज होता है? डीजल इज यूज इन हैवी मोटर लाइक ट्रैक्टर्स एंड अ ट्रक. दिस बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम. अब ये पेट्रोलियम सबसे पहले कहाँ से आता है? लेट अस सी. सो सेम लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो हैविंग सम हिस्ट्री. कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन, बट ये जो डेड एक्वेटिक बॉडीज होते, दैट वॉज ब्यूरिड अंडर द सी ओवर द ईयर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये जो बॉडीज है, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल gas. Different type of petroleums are there. We know about petrol, diesel, but not only petrol, diesel, बहुत सारे दूसरे आपके पेट्रोलियम टर्म्स भी है. सी फर्स्ट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. योर स्टडी दिस ऑल्सो, यू नो अबाउट इट. एलपीजी यूज कहाँ पे होता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. हमारे घर पे जो गैस में जो गैस आता है, दैट. पेट्रोल ऑलरेडी डिस्कस, वी ऑल नो. कैरोसिन आपको पता है, स्टोव में यूज होता है, इन फॉर लैम्प और फॉर जेट एयरक्राफ्ट. डीजल फॉर हैवी व्हीकल लाइक ट्रैक्टर्स एंड ऑल. लुब्रिकेंट ऑयल, कोई भी मशीन को स्मूथ करने के लिए आप लुब्रिकेटिंग करते हो, लुब्रिकेशंस करते हो, वहाँ पे ये यूज़ होता है. पैराफिन वैक्स कैंडल्स और वैसलिन में होता है. बिटुमिन, ये आपका फर्दर स्टडी में आएगा, विच इज़ टू मेड रोड सर्फेसिंग प्रॉपर और फॉर पेंट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ नेचुरल गैस. आपको इसके बारे में ही पता है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉसिल फ्यूल ही है ये भी, विच इज ट्रांसफर थ्रू द पाइप. आपको पता है, वी ऑल नो. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड ऑफ फर्टिलाइजर. देर आर सो मेनी केमिकल प्रोसेस एंड ऑल वेयर दिस नेचुरल गैस इज यूज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. मेक द वर्ड, मेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट. पेट्रोलियम कंजर्वेशन, अब पेट्रोलियम को सेव कैसे करना है? तो CPCR, देयर इज अ वन इंस्टीट्यूट विज नेम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. उन्होंने पीपल को एडवाइस किया हाउ टू सेव. सी, आप पेट्रोल डीजल को स्टॉप तो कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट यूज, दैट्स कंप्लीटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट आप उसको रिड्यूस कर सकते हो. हाउ? सो ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड. व्हेन यू आर ड्राइविंग, डोंट जस्ट फ्लक्चुएट द स्पीड. आप जो ड्राइविंग करते हो, कांस्टेंट स्पीड से ड्राइविंग करो, सो हैंस आपका जो फ्यूल है वो रिड्यूस, स्पेंड कम होगा. स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स. एज वी ऑल नो, whenever we are standing at a signal light, we should switch off engine. Ensure correct tire pressure. We should periodically check tire pressure. Ensure regular maintenance of the vehicle, which means frequently we have to repair our bikes or cars. Frequently we have to give it for service. इससे क्या होगा? आपका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो चेक होता रहेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल कम टू नो कि आपका जो बाइक का और वट एवर व्हीकल्स का जो लाइफ स्पेन है वो भी आपका इंक्रीज होगा. सो इन दिस चैप्टर, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. हियर वी आर कंप्लीट चैप्टर. थैंक यू.